Student, today we will be revising your chapter number 3 from the reader book, that is called Cleanliness is Godliness. Okay, I will be thoroughly explaining you this chapter, and along with this we will be covering a topic called subject and predicate. Okay, we will take examples from the chapter itself and we will see how do we use grammar in our literature, okay, or the reader book. All right, so that we can connect with both the topics. Okay, let's start. Now, I will be telling you the main points in the chapter so that the video keeps short and you get to revise everything. Alright? Yeah. Now, it is saying that 80 billion tons of garbage is added to our oceans and 80% of it is from waste from our mainland. इसका क्या मतलब हुआ कि जो 80% ऑफ गार्बेज होता है ना, जो कि 80 मिलियन टन्स है, वो मेनलैंड से आता है. मेनलैंड मतलब हम लोग, मेनलैंड मतलब कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे लोग रहते हैं. दे प्रोड्यूस दीज मच ऑफ वेस्ट. ओके, दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव सीन दीज डेज कि लोग कहते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो. मिनिमलिस्टिक मतलब कम से कम सामान यूज़ करो, प्लास्टिक कम यूज़ करो, use more of glass and fabric items instead of plastic wrappings and things like that. Use wax paper, use butter paper, things like that instead of plastic. It is because of that only, because it is such a waste that we all are producing every year. Okay, now with the same concern this chapter is also written. This chapter's means is that you need to produce less waste and you need to keep the surroundings clean, which also means cleanliness मतलब साफ सफाई is godliness. godliness मतलब गॉड के जैसा, करेक्ट. godliness मतलब गॉड के समान एक तरीके से. इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट, godliness is गॉड के समान. Now we will start the chapter. Now in this chapter we see that there is a boy called Aman. He is from class 5 like you all are. Okay, and उसकी जो teacher है, she's particular class teacher is very particular about the attendance in the assembly of the class in the morning. Alright, but that day she found that Mohit did not attend the morning assembly. Now Aman is the class monitor. Okay, so on returning the class Aman asked Mohit that Aman ने मोहित से ये पूछा कि why did you skip the assembly? Okay, they knew that their teacher was very strict about it. Before Mohit could answer, the teacher entered the class. The teacher asked Aman if everyone had attended the assembly that day. Now टीचर ने अमन से पूछा, क्योंकि अमन मॉनिटर था, कि क्या सबने अटेंडेंस दी है असेंबली के लिए. तो अमन ने कहा कि नो, मोहित के अलावा एवरीवन वाज देयर. ओके, नाउ टीचर वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड मोहित, इज़ इट ट्रू व्हाट अमन हैज सेड. तो उसने मोहित से पूछा, टीचर ने मोहित से पूछा कि इज़ इट ट्रू व्हाट अमन हैज सेड. ओके, तो मोहित सेड यस इन अ वेरी लो वॉइस एंड स्टूड हैंगिंग हिज हेड. हैंगिंग हिज हेड मतलब सर झुका के, सर लटका के खड़े होने का मतलब है हैंगिंग हिज हेड. ऑलराइट, द टीचर सेड टू मोहित, मोहित यू नो whoever misses the assembly is punished. Before giving you the punishment, I would like to know why you stayed away. तो टीचर ने मोहित से पूछा कि मोहित तुम्हें पता है that whosoever misses the assembly is punished, कि जो मिस करता है असेंबली उसको पनिशमेंट मिलता है. So before she could punish the boy, she asked him, do you want to tell me why did you not attend the assembly? So Mohit told the teacher that he came into the school in time, कि वो टाइम पे स्कूल आया था, but everyone had already gone for the assembly, so he came inside the class. Okay, तो उसने बताया कि मैम जब मैं आया था तो मैं टाइम पे ही था, लेकिन सब लोग ऑलरेडी क्लास जा चुके थे, इसीलिए मैं अंदर आया बैग रखने के लिए. He came inside the class to keep the bag. When he was about to leave for assembly,
He noticed that the classroom was in shambles with dust, rubbish and other waste. इसका क्या मतलब हुआ? When he came to the class, जब वो क्लास में आया तो उसने देखा कि क्लास जो है इट इज़ इन शैम्बल्स. व्हाट डू वी मीन बाय शैम्बल्स? ये देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया है. चिल्ड्रन, वर्ड मीनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अभी हमने ओरल किया था, आई एम श्योर सबको पता चल ही गया होगा सबका लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग का अबाउट द वर्ड मीनिंग्स. ओके, सो वर्ड मीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए. सबको अच्छे से एकदम वर्ड मीनिंग याद करना है. ऑलराइट, शैम्बल्स मीन्स डिसऑर्डर एंड मेस. मेस का मतलब होता है गंदगी, यू नो, अटपटी चीज़ें, यू नो, बिखरा हुआ होना, उसको मेस कहते हैं. ओके, द क्लास वॉज इन अ मेस का मतलब है द क्लास वॉज वेरी डर्टी. ओके, विथ डस्ट, रबिश एंड वेस्ट. यानी कि रबिश था वहाँ पे. रबिश मतलब कचरा, वेस्ट मतलब जो हमने खाया पिया यूज़ किया उसको हमने वहीं पे फेंक दिया एज अ वेस्ट. एंड डस्ट, डस्ट का मतलब धूल मिट्टी. ओके, द होल प्लेस वॉज डर्टी एंड अनहाइजीनिक. डर्टी मतलब गंदी, अनहाइजीनिक मतलब विच इज़ नॉट हेल्दी. ओके, विच इज़ इम्प्योर, अनक्लीन. अनहाइजीनिक मतलब जो हाइजीन जहाँ पे नहीं हो, जहाँ पे हाइजीन एब्सेंट हो. हाइजीन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई, नीटनेस, क्लेanलीनेस. ओके, ऑल दीज मीन अबाउट हाइजीनिक. नाउ इट वॉज अनहाइजीनिक मतलब देखो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स लगा दिया अन एंड हाइजीनिक. तो हमने हाइजीनिक को ऑपोजिट कर दिया. अन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. दैट मीन्स हाइजीन वहाँ पे नहीं है. ऑल राइट, नाउ he told the teacher that everything was very unhygienic. The teacher had always told them that cleanliness is next to godliness. अब देखते हैं इसका क्या मतलब है. यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, इट इज़ गिवन over here. The idea that people have a moral duty to keep themselves as their homes clean and their homes clean. Okay, godliness का बेसिकली मतलब ये होता है कि गॉड के जैसा. अगर आप साफ़ हैं तो इसका मतलब आप भगवान के जैसे हैं. अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखते हैं इसका मतलब आप भगवान के जैसे हैं. इसका मतलब आप उनके जैसे वाइड थॉट रखने वाले हैं, आप उनके जैसे वाइज हैं, आप उनके जैसे काइंड हैं, आप उनके जैसे सब लोगों को अच्छा कर सकते हैं. यू नो, जैसे भगवान सबका अच्छा करते हैं, लाइक दैट. बिकॉज़ अगर आप नीट हैं, क्लीन हैं, हाइजीनिक हैं, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी लोगों को इन्फेक्शन नहीं दे रहे हैं. खांसी ज़ुकाम, ऑल दीज थिंग्स, लॉट ऑफ जर्म्स, ये सब नहीं दे रहे हैं. नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहे हैं. दैट मीन्स यू आर नेक्स्ट टू गॉड. ओके, यू आर जस्ट लाइक गॉड. दैट इज़ वाई वी से cleanliness is next to godliness. Alright children, I hope the meaning is clear. So Mohit cleaned the room and therefore could not attend the morning assembly. Now मोहित ने क्या किया? जब मोहित ने देखा कि the class was in shambles, तो उसने सोचा कि पहले मैं क्लास को साफ़ कर देता हूँ, फिर मैं असेंबली चला जाऊँगा. तो उसने क्लास को साफ़ करा. ओके, इसीलिए वो असेंबली नहीं जा पाया. Now the teacher says, since you have taught us the dignity of labor. Dignity of labor का क्या मतलब है? ओके, यहाँ पे दिया है देखो नीचे. Children, here. The idea that all types of jobs should be respected equally. No particular occupation is considered superior and no job should be considered inferior on any basis. डिग्निटी का क्या मतलब होता है? डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट. ओके, डिग्निटी ऑफ लेबर. लेबर का मतलब वो नहीं होता जो घर बनाती है. लेबर का मतलब वो नहीं होता जो साफ़ सफाई करती है. लेबर का मतलब होता है मेहनत. अब वो मेहनत चाहे टीचर की हो पढ़ाने के लिए, पायलट की हो एरोप्लेन उड़ाने के लिए, या फिर पॉलिटिशियंस की हो देश चलाने के लिए, या फिर एक डेली वेजर की हो जो कि घर बनाता है, या फिर सामान उठाता है, या फिर कैटल को ग्रेस करने ले जाता है,
या फिर एनीथिंग। ओके, सो डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स कि जो भी इंसान अपना पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो कि किसी और को मिलती है। ओके, दैट मीन्स जो भी इस दुनिया में जॉब्स हैं, अब वो एक टैक्सी ड्राइवर हो या फिर एक पायलट हो, उन दोनों को सेम ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिकॉज वो दोनों मेहनत कर रहे हैं अपना अपना एरिया में, वो दोनों मेहनत कर रहे हैं। करेक्ट, नो वन इज़ लाइक अर्निंग मनी फॉर फ्री, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर है, जो मेहनत है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ना कि जो वो पैसा कमा रहे हैं उसकी, या फिर जो वो ग्लैमरस है, या फिर वो सुंदर दिख रहा है, या फिर वो हाई एंड दिख रहा है, या फिर वो सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है, उसकी रिस्पेक्ट ना करके जो मेहनत है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। ऑलराइट, दैट इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। नाउ कमिंग बैक टू द बुक, I volunteered to tidy the classroom. Tidy मतलब साफ सफाई, to clean here. Now, जब उसने देखा कि क्लास शैम्बल्स में है तो फिर उसने साफ कर दिया। Alright. If you have done something wrong, please pardon me. Sorry, if I have done something wrong, please pardon me, ma'am. I am ready to accept any punishment by you. तो अब मोहित कहता है मैम से कि मैम, आई वॉलंटियर्ड बाय माई सेल्फ, कि मैंने खुद से, वॉलंटियर का मतलब होता है हियर विलिंगली ऑफर्ड टू डू समथिंग। जब आप किसी चीज़ के लिए वॉलंटियर करते हो मतलब आप उसके लिए खुद से हाँ बोलते हो कि हाँ मैं करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मोहित ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं क्लास को साफ़ करूँगा। ओके, तो उसने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली एंड उसने अपने आप से वॉलंटियर किया कि मैं क्लास को साफ़ करूँगा। ऑलराइट, तो मोहित बताता है मैम को कि मैम मैंने सोचा कि मैं क्लास को साफ़ करूँगा। ओके, एंड ही ऑल्सो सेड कि आप जो भी पनिशमेंट देंगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। टीचर वॉज मूव्ड बाय मोहित वर्ड एंड सेड, मोहित यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। If everyone thinks and acts according to your views, our school will become best. तो टीचर मोहित से कहती हैं कि अगर सब लोग तुम्हारे जैसे सोचेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे एरिया को क्लीन रखने की, तो ये देश और ये दुनिया कितनी साफ़ हो जाएगी। करेक्ट। नाउ then she says there is no punishment. Okay, so she says कि because you have done such a commendable job, I will not give you any punishment. Okay, now let's see the last line. Mohit was highly appreciated by the teacher who pointed him out as a model to be copied by all others. तो टीचर ने कहा कि मोहित हैज़ बिकम अ मॉडल, जिसको बाकी सबको कॉपी करना चाहिए, बिकॉज उसने इतना कमेंडेबल जॉब किया। कमेंडेबल मतलब शाबाशी वाला काम किया। ओके, सो चिल्ड्रन, दैट वाज अबाउट द चैप्टर। देर आर सम ट्रू फॉल्स हियर, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द चैप्टर वंस। एक बार आप उसकी रीडिंग करें और ये सारा क्वेश्चन एंड आंसर्स याद करें। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये क्वेश्चन आंसर्स, करेक्ट। And you have to remember all the important points in the chapter, which is cleanliness is next to godliness. All the word meanings should be learned by you. कोई word meaning नहीं छूटना चाहिए। आप सबको रीडिंग करना ही है चैप्टर का। Alright children, that's about it. And if you have any doubts, you can please ask me on the WhatsApp group or on the personal WhatsApp. Thank you so much children.